Dear students and friends, good morning to all of you. Myself Mr. Harkesh from Vivekanand School, Dharavika. Dear students, we are continued on chapter 14, statics. Yesterday, you watched the video related to direct method to calculate the mean. Today, we discuss about the assumed mean method to calculate the mean. So what is the formula to calculate the mean by assumed mean method? By assumed mean method, mean x bar is equal to a plus summation fi di upon summation fi, where a is assumed mean. Value of this a is selected from xi. Students, value of a is selected from xi. Summation fi means sum of all frequencies. Fi into di. How we can calculate di? Where di is equal to xi minus a. What is xi? Class mark. What is a? Assumed mean. So we have to make a column di xi minus a to solve the questions from assumed mean method. Now I start assumed mean method to solve the problems based on exercise 14.1. We take any question from this exercise to solve the problem. By assumed mean method, we solve any question. So now I take question number 6. Now I take question number 6 to solve the problems. Here, class interval. We have to find xi. Fi is given. Di is equal to xi minus a, and then last column is students fi di. Class interval 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. Frequencies are 4, 5, 12, 2, 2. In all the formulas to calculate the median, there is a requirement of summation fi, sum of all frequencies. 4 plus 5 9 plus 12 21 23 25. The sum of all frequencies is 25. How we can calculate xi? 100 plus 150 250 by 2 125. 150 plus 200 350 by 2 175. इस तरीके से आप xi कैलकुलेट कर लेंगे सभी के. Now friends, we have to select a, that is assumed mean. We have to select the a from the column of xi, and here in the column of xi there are 5 values 125 175 225 275 325. इसमें से हम मिडल वाली सेलेक्ट करेंगे. here ऊपर स्ट्रेस, इससे ऊपर हमने 1 2 दो छोड़ दी हैं, इससे नीचे भी हमने दो छोड़ दी हैं, तो हमारी बीच वाली वैल्यू क्या हुई 225. तो वेयर a जो हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये 225 जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा? a के. तो di is equal to xi minus a. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? xi minus 225. xi minus 225. Now we put
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xi इन फर्स्ट 125, तो 125 माइनस 225 माइनस 100, 175 माइनस 225 माइनस 50, 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50, 325 माइनस 225 100. Now fi into di, what is the value of fi? 4. What is the value of di? minus 100. minus 100 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 400, माइनस 50 को 5 से, माइनस 250, 12 को आप मल्टीप्लाई करें 0 से, 0, 50 टू जा 100, 100 टू जा 200. स्टूडेंट्स इन्हें हम ऐड करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi di, तो आपका जो समेशन fi di आएगा स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 400 माइनस 250 माइनस 650 प्लस का 100 प्लस का 200 प्लस के 300. स्टूडेंट्स एक माइनस का और एक प्लस का, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और साइन वो लगाएंगे जो बड़े के साथ है. इट मींस दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi di माइनस 350. यहां पे आपके पास समेशन fi di की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 350. अब हम इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मीन बाय अज्यूम मीन मेथड. तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन बाय दिस मेथड इज मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi. What is the value of a? What is the value of a? A is 225, 225. A is 225 plus summation fi di minus 350. What is the value of summation fi 25? 225 प्लस माइनस माइनस 350 को आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स किससे, 25 से. 25 बन जाए 25, 14, 25 बचा 25, 10 बचेगा आपका, 0 उतारोगे 25 4 जा. इसमें से आप माइनस करें 211. तो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? तो मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 211. वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, by assumed mean method mean is equal to a plus summation fi di upon summation fi, where a is called assumed mean and di is called xi minus a. Now more questions from this method. Now I start next question from this method. We are continued on this method. Now students, question number 8, we solve this question also by assumed mean method. Students, class interval, फिर आपका कॉलम क्या होगा, आप xi फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, fi आपको गिवन होगा, आप di फाइंड आउट करेंगे, xi माइनस a, where a is assumed mean, फिर आप क्या कॉलम बनाएंगे, fi di. यही कॉलम आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी थे स्टूडेंट्स. क्लास इंटरवल आर 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. आप xi फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 6 प्लस 0 6, 2 से डिवाइड 3, 10 प्लस 6 16 का हाफ 8, 14 प्लस 10 24 का हाफ 12, 20 प्लस 14 34 का हाफ 17, 28 प्लस 20 48 का हाफ 24, 38 प्लस 28
66 का हाफ 33, 40 प्लस 38 78 का हाफ 39। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 11 10 7 4 4 3 1। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आपको सभी क्वेश्चन में चाहिए, सभी उन क्वेश्चन में चाहिए जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। यदि स्टूडेंट्स आप मीन डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन किसी से भी फाइंड आउट करोगे तो आपको सभी के फॉर्मूले में समेशन fi की वैल्यू चाहिए। इसलिए समेशन fi 11 प्लस 10 21 प्लस 7 28 32 36 39 40। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास xi में कितनी वैल्यूज है? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। हमें यहाँ से जो a सेलेक्ट करना है वो बीच वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से यदि हम इस 17 को a अज्यूम कर लें तो ये देखो 17 क्यों अज्यूम किया? क्योंकि इसके ऊपर 1 2 3 तीन वैल्यूज बच गई और 1 2 3 इसके नीचे भी तीन वैल्यूज, तो ये बीच वाली वैल्यू है, मिड वैल्यू है, इसलिए हमने 17 लिया किसके इक्वल? a के। a आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? अज्यूम मीन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 17। तो xi माइनस a के नीचे आप क्या वैल्यू पुट कर ले? 17। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ di? xi की वैल्यू आपकी क्या है? 3। तो आप रखिए 3 माइनस 17 माइनस 14। फिर xi की वैल्यू क्या है? 8। 8 माइनस 17 माइनस 9। फिर क्या रखे आप? 12 माइनस 17 माइनस 5। 17 रखिए, 17 माइनस 17 0। 24 माइनस 17 7। 33 माइनस 17 60। 39 माइनस 17। 39 में से आप 17 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका क्या आया स्टूडेंट्स? 2 2। इट मींस दैट 22। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? यहां आपको नेक्स्ट कॉलम है आपका fi di। तो आप fi इंटू डी आई कीजिए। fi की वैल्यू 11, di की वैल्यू -14। तो 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -14 से, 10 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से 0, 4 7 जा 28, 16 3 जा 48, 22 1 जा 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi di? स्टूडेंट्स प्लस वाले आप ऐड कर लें और माइनस वाले इकट्ठे ऐड कर लें। तो माइनस से आपके पास कितनी है? देखो ये आप 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 9 14 प्लस 3, 5 प्लस 9 14 प्लस 3 17, 1 और 1 2। ये वैल्यू आपकी किसकी है स्टूडेंट्स? माइनस की। प्लस की टर्म्स कितनी है? काउंट करते हैं। 8 प्लस 8 16 और 2 18, कैरी 1, 2 और 1 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9। स्टूडेंट्स एक माइनस का एक प्लस का, तो आप बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे और वो साइन वो लगाएंगे जो बड़े के साथ है। तो आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 9 माइनस 8 1, 17 माइनस 9 8 और ये। तो आपका समीशन fi di की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स? -181। अब हमारी टेबल कंप्लीट है स्टूडेंट्स। अब हम मीन कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज का यूज करके उन्हें अज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाई assumed mean method, mean x bar is equal to a plus summation fi di upon summation fi। a की आपकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? a आपने सिलेक्ट किया था एक्सरसाइज में से, assumed mean आपका क्या है? 17 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi di? Value of summation fi di is -181. What is the value of summation fi? 40. So 17 plus minus minus 181 upon 40। आप स्टूडेंट्स 181 को 40 से डिवाइड कर लें और फिर उसे 7 जो आता है आपका उसे 17 में क्या कर दें? माइनस। तो 181 को यदि हम 40 से डिवाइड करें तो देखना 14 4 जा 160 1 2। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 0 0, यहाँ क्या आएगा आपका? डेसिमल। 14
45 जा 200, 10 0 0 2 जा 85, 4.525। यदि आपने 181 को स्टूडेंट्स 40 से डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2 प्लेस तक इधर 5 है, 5 से ज्यादा तो एक इंक्रीज कर लेना 4.53, तो 17 माइनस 4.53, तो 17 में से आप ये माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 17.00 में से माइनस किया 4.53, कैरी यहाँ क्या होगी 10, यहाँ से कैरी इधर जाएगी तो 10 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 5 4 2 1, तो व्हाट इज योर आंसर 12.47, 12.47। तो once again I want to clear that in assume mean method steps are, these first 3 steps are in all methods, class interval, xi, fi, in all. In assume mean method you have to find di. How we can find di? Xi minus a, where a is assume mean and we have to select the value of a from xi mid term. xi देखो हमने ये select किया, यही क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे पास कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स हैं, 17 के ऊपर भी हमारे पास 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, मींस xi में से आपको बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। इसमें हमारे पास जो टर्म्स थी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल टर्म्स थी ओड, इसलिए हमने बीच वाला कवर किया स्टूडेंट्स, तो 3 ऊपर बचे 3 ही नीचे, इजीली हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल जो गिवन होंगे और आई कैन से xi की जो वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ओड है, उसमें कैसे होगी इवन, तो इवन यदि होंगे तो हाउ वी कैन सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम xi। नाउ आई टेक द एग्जांपल ऑफ इवन टर्म्स। फॉर्मूला इन ऑल क्वेश्चंस इज सेम, सो यहां हम स्टूडेंट्स फॉर्मूले को इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला अज्यूमिंग मेथड में सभी में क्या है आपका सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दिस मेथड स्टूडेंट्स, by this method students, now we do example third. In example third, class interval and frequency is given students, we have to find xi, then what is our di, हम फाइंड आउट करेंगे वही xi माइनस a से, तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे fi इंटू di। क्लास इंटरवल आर 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450. Frequencies are 7, 5, 16, 12, 2, 3. We have to do the sum. So summation f5 is equal to 7 plus 5 12 plus 16 28 40 42 or plus 3 45. So what is the sum of all frequencies? Sum of all frequencies is 45. xi आप फाइंड आउट करेंगे 60 plus 20 80 का हाफ, 100 plus 60 160 का हाफ, 150 plus 100 250 का हाफ, 250 plus 150 400 का हाफ, 350 plus 250 600 का हाफ, 450 plus 350 आपका क्या होगा 800, उसका हाफ क्या होगा स्टूडेंट्स 400। तो ये हमारी वैल्यूज किसकी आई xi की। अब हमारे पास xi में कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, मींस इवन टर्म्स है। इन इवन टर्म्स में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, अज्यूम मीन a सिलेक्ट करना है। तो a की वैल्यू यदि स्टूडेंट्स में 3 नीचे छोड़ दो 1 2 3, ये 3 नीचे छोड़ दें और 1 2 3 3 ऊपर छोड़ दें, फिर तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए दो हमने
नीचे छोड़ दिए स्टूडेंट्स और 2 ऊपर छोड़े, तो हमारे पास बीच में मिड वैल्यू है। कितनी वैल्यूज बची? 2। इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है क्या? इन दोनों वैल्यूज में से हमें ये सेलेक्ट करना है अज्यूम मीन। आपकी बुक में जो एग्जांपल गिवन है उसमें अज्यूम मीन क्या सेलेक्ट कर रखा है उसने? 200। आप 125 सेलेक्ट कर भी इसे पूरा कर सकते हैं। तो आपकी बुक में 200 के अकॉर्डिंग एग्जांपल सोल्व कर रखा है, मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं 125 को सेलेक्ट करता हूं। क्या आपका ए? आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 125 को सेलेक्ट करें या फिर 200 को। मैंने ए की वैल्यू क्या ली? xi माइनस ए क्या सेलेक्ट किया? 125। अब हम पुट करते हैं xi की वैल्यू क्या? 40, तो 40 माइनस 120 माइनस 85। 80 रखते हैं यहां, 80 माइनस 125 माइनस 45। 125 माइनस 125 0। 200 माइनस 125 75। 300 माइनस 125 175। 400 माइनस 1 27। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई स्ट्रेस? di। नाउ fi इंटू di, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से, साइन क्या होगा आगे? माइनस। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 और 350। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25 2, 5 4 जा 20 और 2 22। 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे आप? 175 को, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 275। ये हमारे किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स? fi di की। अब हम सम करेंगे, ये दोनों हमारी किसकी टर्म्स है? माइनस की, तो इन दोनों को इकट्ठा कर ऐड करें और साइन क्या लगा दें? माइनस। 5 + 5 10, कैरी 1, 11 1 12, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8। ये लाइक टर्म्स है, सारी प्लस की टर्म्स है, तो इनको ऐड कीजिए। इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम, 50 + 25 75, 9 + 3 12 + 8। तो हमारे यहाँ प्लस का है 2075 और माइनस का है 820। यदि हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारी यहाँ बड़ी वाली जो टर्म्स है स्टूडेंट्स उसके आगे क्या साइन है? प्लस का। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो fi di की, वो किसकी होगी? समेशन fi di की वैल्यू प्लस में आएगी। तो आप 2075 में से माइनस का 820 कर लें, 820 को माइनस कर लें तो 5 5, इसमें से आप ये माइनस करेंगे, इधर से कैरी जब जाएगी तो 2 1, तो आपका क्या आया? 1255। तो इस तरीके से हमने इस टेबल में क्या कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स? समेशन fi di जो हमें चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट किया, समेशन fi की वैल्यू भी हमने क्या की? कैलकुलेट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम इसे पुट कर लेते हैं हमारे अज्यूमिंग मेथड के फॉर्मूले में। इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स? मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 125। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi di? 1255। What is the value of summation fi? 45। 125 प्लस, यदि स्टूडेंट्स हम इसे कैंसिल आउट करना चाहें तो 5 से कैंसिल कर लें। 5 2 जा 10 2, 5 5 जा 5 1 जा 5 9 जा, तो 251/9। तो 125 प्लस 251/9, 251 को आप 9 से डिवाइड कर लें, 9 2 जा 87, यहाँ क्या है आपका 1। 9 8 जा तो 72 होगा, ज्यादा चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 7 जा 63, यहाँ आपका क्या है 8 0 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल। 9 9 जा 81, तो 9 8 जा पर जाएगा, 9 8 जा 72, फिर 8 आया स्टूडेंट्स, फिर 9 8 जा 72, 9 8 जा तो 27.29। यदि आप 251 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 27.89। तो अब हमें ये प्लस करना है, 125 प्लस 251 को हमने 9 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 27.89। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 152.89। तो व्हाट इज द मीन इन दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द मीन? 152.89। यहां आपको स्टूडेंट्स एक बात क्लियर समझनी है कि यहां जो di की वैल्यूज है वो देखो 1 2 3 4 5 6, fi की फ्रीक्वेंसीज गिवन थी 1 2 3 4 5 6, तो आप बताइए जब क्लास इंटरवल में 6 टर्म्स हैं तो ये सभी 6 होंगी, और xi में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 थी
तो हमें स्टूडेंट्स दो ऊपर छोड़ी, दो नीचे, बीच में हमारे पास ये दो टर्म बची 125 एंड 200। इनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है, वो हमारा क्या होगा, अज्यूम मीन। तो हम 200 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 125 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हम चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल सोल्ड है वहां तो इस 200 को ए सेलेक्ट करके सोल्व कर रखा है, मैंने किसको ए सेलेक्ट किया, 125 को, और तब भी आपका आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आज हमने किस मेथड पर डिस्कशन किया स्टूडेंट्स, मीन बाई अज्यूम मीन मेथड। यदि हम अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे, जैसा मैंने कल बताया था, टोटल 9 क्वेश्चंस है। तो हमने 3 क्वेश्चन कल स्टूडेंट्स किए थे डायरेक्ट मेथड से, आज जो क्वेश्चंस किए हैं हमने अज्यूम मीन मेथड से। हम कल जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट द मीन। मीन कैलकुलेट करने के लिए जो थर्ड मेथड था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उसके ऊपर भी बेस्ड हम कल 3 क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम टोटल हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 9 कंप्लीट हो जाएंगे। विदाउट टेकिंग मच टाइम, नाउ आई वांट टू से दैट स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट these questions in your rough notebook and you have to do practice 4 more questions। आप इस मेथड के द्वारा स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप अपना स्टूडेंट्स लास्ट में ये बात जरूर कहना चाहूंगा, अपना डेली का काम डेली कंटिन्यू करते रहिए। यदि आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स आते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से कांटेक्ट करें, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमेशा रेडी हैं। थैंक्स अ लॉट।